یہ نیو یارک شہر کی 10 منزلہ عمارت میں واقع ایک کشادہ فلیٹ ہے جس کے لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر وہ اکیلی بیٹھی رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج رات سے پہلے اسے اس قد آدم کھڑکی سے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آج بھی وہ ٹکٹکی باندھی کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کی نظر اپنے اندر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر تھی۔ وہ اداس تھی، دکھی تھی، سنجیدہ اور سوچوں میں گم تھی۔ ان سوچوں میں جو یکدم ہی اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اسے نت نئے خیال آ رہے تھے۔ وہ کچھ خوف زدہ تھی۔ اسے شکوک و شبہات نے بھی آن گھیرا تھا۔ وہ گزرے ہوئے کل سے مختلف آج ایک نئی ہور تھی، ایسی ہور جس کا سکون یکدم سے ہی کوئی اڑ لے گیا، ایسا کوئی جو اسے پسند نہیں، کوئی ایسا جسے وہ بھول بیٹھی ہے، بھول جانا چاہتی ہے، بھلا دینا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس کے دل میں یا اندر کہیں ہے بھی تو۔ چند گھنٹوں قبل جو ڈریس اس نے بہت شوق سے پہنا تھا، اب وہ اسے قابل نفرت لگ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بے ترتیب کر دیا تھا، غصے اور بے قراری سے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا، اس لیے بھی کیونکہ گھر کے 2 افراد میں سے ایک اپنے بیڈ روم میں سو چکا ہے اور ایک کاؤچ پر پامال سا بیٹھا ہے۔ چند گھنٹے قبل وہ خوش اور پرجوش تھی۔ اس نے وکٹوریہ سکیم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا تھا جو اس کی وارڈروب میں اپنی طرز اور دلکشی میں انوکھا اور یکتا تھا۔ ٹاپ آف وائٹ کلر کا تھا جس پر ہم رنگی سٹونز کا ستاروں جیسا چھڑکاؤ تھا۔ یہ ایک بہترین مغربی ڈریس تھا جسے اس کے بھائی نے خاص برطانیہ سے لے کر اسے گفٹ کیا تھا۔ وہ اس ڈریس میں خود کو بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی اور خود کو خود ہی سراہ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلوز لگایا تھا اور اس کے لیے بھی بہت تھا۔ وہ سوتے سے اٹھ کر بھی کہیں چلی جاتی تو بھی محفل لوٹ لیتی، تو بھی سب نظریں اس پر واری جاتی۔ اب تو وہ پھر دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنے پیچھے اسے کھڑے دیکھ کر وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگی، عین اس کے قریب ہو کر۔ وہ مبہوت اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ انداز سے آنکھیں چپکا کر باربی ڈول کی طرح ٹاپ کا کونا پکڑ کر ذرا ایسا گھومی اور پھر ہنسنے لگی۔ اب بتاؤ۔ اس نے نہیں بتایا اور اس کے بال رولر سے آزاد کرنے لگا۔ اس کا منہ بن گیا، ہونٹ اس نے جان بوجھ کر مزید لٹکا لیے۔ تم جانتی ہو کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ پہلے وہ مسکرایا، پھر کہہ ہی دیا، تم میری تعریف نہیں کر سکتے، تمہیں تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ختم کرنے والے انداز سے تو کوئی بات شروع ہی نہیں کی جا سکتی۔ تم پر سب تعریفیں ختم ہیں۔ وہ مسکرایا، وہ بھی مسکرا دی۔ ایسے ٹھیک ہے؟ ہر بار ایسے ہی؟ یعنی عورت وہ مورت ہے جو تعریف سے جاگ اٹھتی ہے؟ نہیں، عورت وہ مورت ہے جو محبت سے زندہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ہر بہار اس میں اتر کر کھل اٹھتی ہے۔ وہ بہاریں پھر امر ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ ہے یا شاعری؟ اس نے سر کھجایا، یہ محبت ہے، تم سے میری، مجھ میں تمہاری۔ وہ خاموش ہو گیا، اسے بھی خاموش ہی ہونا پڑا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے دوست کی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں جا رہی تھی۔ نیو یارک سٹی میں یہ اس کی پہلی باقاعدہ آؤٹنگ تھی۔ شاپنگ اور چند بار کے ڈنرز کے علاوہ 2-2.5 ماہ ایک فلیٹ میں بیکار بند پڑے رہنے کے بعد اسے پارٹی میں جانا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کپل کی صورت میں اس کے دوستوں
और दूसरे लोगों से मुतारिफ होने जा रही थी। उसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता था कि वो उसका हाथ पकड़े, दूसरों को ये बताए कि ये है मेरी वाइफ। मजीद अगर वो ये कह दे माई स्वीट हार्ट तो कमाल ही हो जाए और लोग उन दोनों को देखते ही रश्क करने लगे। इन दोनों पर क्या या नहीं, मगर इसके हुस्न पर जरूर किया। उसे देख के सब दंग रह गए। पार्टी में उसकी सोच से ज्यादा लोग थे। ये एक आम सी हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं थी। पार्टी के लिए खासा एहतमाम किया गया था। म्यूजिक बैंड अपने फन का मुजाहिरा कर रहा था। बहुत जबरदस्त पार्टी है, वो खुश हुई। बहुत भीड़ है, वो नाराज नजर आने लगा। तुम्हारे ही दोस्त हैं सब, इन्हें भीड़ कह रहे हो। इसका मुंह बन गया। फिर सिर्फ आधे ही घंटे बाद वो उसे अपने साथ कार में लिए बैठा था। बहुत खुश हो? सवाल तो ठीक था, पर अंदाज। हाँ, वो मुस्कुराई। उसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए इसलिए भी वो खिलखिलाई। और मर्दों ने की है, इसलिए भी। उसका लहजा बदला, उसकी खिलखिलाहट थमी। उसकी तरफ उलझ कर देखा। क्या वो मजाक कर रहा था? वो उसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे। मतलब इसकी समझ में नहीं आया क्या पूछे। मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, उठला रही थी। तो क्या मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खासकर खुद को नुमाया करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमाया किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? वो सब मर्द थे। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। वो जो भी थे, मैं उनसे तुम्हारे ताल्लुक से मिल रही थी। तुम भी मेरे साथ ही थे। तुम खुद मिलवा रहे थे सबसे। अगर एतराज था तो मत मिलवाते ऐसी बातें। वो भी मेरे लिए। उसने बमुश्किल अपना रोकना रोका। वो तुमसे ताल्लुकात बना रहे थे और तुम। ताल्लुकात और मैं क्या? उसकी आवाज ऊंची हो गई। और मैं क्या? वो चिल्लाई। वो ऐसे खामोश हुआ जैसे जवाब तो उसके पास हजार हैं, मगर वो उन्हें बयान करना नहीं चाहता। मुझे किसी से ताल्लुकात बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ताल्लुक काफी है मेरे लिए। एक ही ताल्लुक तो काफी नहीं होता ना, तुम सब के लिए। उसने जाने क्यों यही तंज किया उस पर। मुझे किस सब में शामिल कर रहे हो? इसे झटका लगा। वही जो तुम हो। क्या हूं मैं? बीवी हूं तुम्हारी। और क्या हूं? अब तो वो हर सूरत मालूम करना चाहती थी कि इन इतनी सारी बातों का मतलब क्या है। तो बीवी बनकर ही रहो ना। वो उन अंदाजों का हामिल नहीं था। आज ही आज, अभी के अभी उसने इतने अंदाज सीख लिए थे। बीवी ही तो बनी हूँ, वरना तुम बता दो कैसे बनते हैं। वो इस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर थी। खुद को जरा तसल्ली देने के लिए उसने यही सोच लिया कि शायद वो आज परेशान है और इस परेशान को मजीद परेशान ना करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जाने वाली सड़क को पहचान कर उसने पूछा। घर। उसकी आवाज उसके मूड से भी ज्यादा खराब थी। तुमने कहा था हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर तुम घर करना। तुम इसलिए मुझे वहां से इतनी जल्दी में लेकर निकले। वहां से निकलने का गम अभी तक है, वहां से जल्दी आने का नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने का। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? आज वो खामोश हो गया, जैसे उसकी ठोस दलील पर कायल हो गया हो। सोचने लगा कि क्या हुआ इसे।
अचानक से कुछ नहीं होता, हर चीज की वजह होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। उसका अंजाम शायद अचानक सामने आता है। ये सब उसने उसे नहीं कहा था। उसने खुद से या किसी और से ही ये कलाम किया था। उसके पहलू में बैठी हूर पर बहुत से रंग आकर गुजरे। इस बड़बड़ाहट पर वो एक नॉर्मल इंसान था। अचानक से उसे शबा हुआ कि वो अब नॉर्मल भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर का किफिल खोलकर उसने उसे अंदर छोड़ा और खुद वापस पलटा। कहाँ जा रहे हो? वापस पार्टी में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, कहकर वो चला गया। उसने रोककर उसके चेहरे पर छाए अफसोस और मलाल को भी नहीं देखा। उसने ये भी नहीं देखा कि वो जो इतनी खूबसूरत लग रही थी अब क्यों इतनी बदसूरत नजर आने लगी है। बदसूरती की इब्तिदा उसने अपना नेकलेस उतार कर की। उसने उसे नोच कर उतारा और दीवार पर दे मारा। फिर झटके से अपने जूते उतार फेंके। दाएं कलाई में पहना ब्रेसलेट, दोनों कानों में पहने टॉप्स। गुस्से से बालों में इतनी बार हाथ चलाए कि वो उलझकर खिजा रसीदा से नजर आने लगे। इसे गम ज्यादा था या गुस्सा, वो अंदाजा ही नहीं लगा सकी। और वो बहुत बुरी तरह से सहम गई। कुछ देर पहले वो एक ऐसे शख्स से मिली थी जिसे वो जानती ही नहीं थी। ये शख्स से अचानक मुलाकात थी, जैसे चलते चलते किसी गलीज सी चीज से उलझकर गिरना। 2 घंटे बाद वो वापस आया तो वो वहीं बैठी थी, बिना कुछ खाए पिए, एक ही अंदाज से बाहर देखते हुए। उसके फेंके गए जूते ये बता रहे थे कि वो किस कदर गुस्से में आ गई थी उन जूतों और जूतों को पहनने वाली। पर एक नजर डालकर भी वो उसे बहलाने इसके पास नहीं आया और जाकर सो गया। वो जाकर सो गया और वो सो ना सकी। उसे क्या हो गया है, वो खुद से बार बार ही एक सवाल कर रही थी। ये सवाल उसे खुद से ही करना चाहिए था। उससे मुतालिक बहुत से सवालों के लिए यकीनन उसी के पास आना चाहिए। वो जो जरा सा सहम गई है, वो जो अंदर जाकर सो जाने वाले से बेइंतहा मोहब्बत करती है, वही मोहब्बत जिसमें सब जायज है, सब खून माफ है, जिसका हर वार पर इख्तियार है। इसी सब के लिए वो सहम गई है। मूड उसका खराब होना चाहिए था, जबकि उसने अपना मूड खराब कर लिया। कई दिन तक वो उससे खींचा खींचा रहा, कुछ पूछने पर भी जवाब ना देता, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखना जैसे उसने खुद पर हराम कर लिया था। और वो कहीं बाहर ले जाने पर भी उस पार्टी के बाद वो उसे दोबारा कहीं नहीं लेकर गया। छोटी बड़ी पार्टीज तो होती ही रहती थी, वो खुद भी उनमें नहीं जाता था। वो इस तरह की शौक नहीं रखता था। इसे किताबों से बहुत लगाव था और वो उन्हीं पर सर रख कर सो जाता। न्यूयॉर्क में जो उनके करीबी मिलने वाले थे और जिनके यहाँ जाए बिना रहा नहीं जा सकता था, वहां वो अकेला ही जाता था। उसे नहीं मालूम कि वो लोगों के पूछने पर क्या कहता होगा। शायद एक ही घिसी फटी बात कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, या वो कुछ मसरूफ थी, या वो जरूर आती अगर बहुत थकी हुई ना होती। आइंदा जरूर लाऊंगा। मैं उसे अपने साथ ऐसी ही बहुत सी बातें करता होगा। उसकी बीवी खूबसूरत थी और वो उस खूबसूरती को घर में रखना चाहता था। वो एक औरत थी और वो उस औरत पर एतबार करना नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो रहा था। वो एक अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा शौहर नहीं बन रहा था। वो बहुत खुले जहन का मालिक था, वो उसके उलट होता जा रहा है। पहली ही तकरार ने उसकी जूं बदल दी। वो देखती ही रह गई, आसमान के सारे सितारे एक साथ टूटते, तो भी वो इतना हैरान ना होती। और अब उसे देख देख उसकी हैरत जाती ही नहीं। बदल तो वो कुछ अरसे पहले ही रहा था, इस पर अब आश्कार हो रहा था
क्योंकि अब दोनों साथ थे, दोनों एक ही ताल्लुक से थे और वो उसका हाकिम था। भले से वो उसे महबूब बनाए बैठी रहे, उसे देख देख कर जीती रहे, उसे सोच सोच कर ख्वाब बुनती रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बदलने लगी। वो अपनी खूबियों को आग लगा देने के दर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसे उसके पर्सनल फोन रखने पर एतराज हुआ। न्यूयॉर्क जैसी हाई फाई सिटी में वो उसके पर्सनल फोन पर बहस कर रहा था। घर में फोन है, वो इस्तेमाल करो। मुझे घर का फोन इस्तेमाल करने पर एतराज नहीं है। मुझे एतराज फोन छीन लिए जाने पर है। एतराज, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम एतराज करो? तुम्हें जो कहा तुम वो करो। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो रो देने को हुई। तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं। ये सवाल बहुत कड़ा था। उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बताना होगी। नाकामी से बचने की एक कोशिश की उसने। तो फिर सुनो, शादी से पहले तुमने ये वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी। तुमने कहा था ना। एक ये चाल उसे हर जगह मात करने वाली थी, हर बार हारने वाली थी। वो अब इसे कहा था शादी से पहले उसने बहुत कुछ कहा था। हाँ, वो बेबसी से बोली। मैंने कहा था, लेकिन लेकिन क्यों? कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं। कितनी जल्दी थी उसे बसात समेटने की। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। कोई भी इस बारबी को इस हालत में देख लेता तो कब अफसोस मिलता, तरस खाता, उसके लिए दुआ खैर करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी उसने अलैदगी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कैसे? अब ही तो लाखों सवाल बनते थे कि उससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलैदगी की बात कर दी तुमने? जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से निकालो। अलैदगी की बात कर रहे हो? तुमने क्या कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है। मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा। तुम्हें क्या हो गया है? बेचारगी से उसने पूछ दिया और जवाब सुनने की उसमें सकत ना रही, ना वो कर सकी। वो क्या कह रही थी वो सुन नहीं रहा था। वो क्या पूछ रही थी वो बताना नहीं चाह रहा था। वो किस मकाम पर है उसका तायुन उसने किया ही नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वो अब हर बार चिढ़ता था। फिर शायद वो भड़केगा और फिर वो मोहब्बत से नफरत करने लगेगा। किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। उसने पर्सनल फोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वो ये सब चाहता था तो वो भी ये सब चाह सकती थी। एक मरहला मोहब्बत ही सब कुछ होता है, सहल भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सभी कुछ सहल लगने लगता है, ना मिले तो एक सुई उठाना भी मुश्किल लगता है। उसे उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ उसके लिए मुश्किल ही था। जब वो उसे ना देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना और उसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वो पूर उससे मोहब्बत करती है। और ये मोहब्बत नफरत में भी बदलती थी जब जब वो लफ्जों के कोड़े लिए उसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है? कब लॉक खोलकर वो अंदर आया उसे पता ही ना चला। वो ऐसे ही दबे पांव घर में आता था, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छुप छुप कर किया जा रहा है। निम्रा आपी का वो किचन में काम कर रही थी। उसकी तरफ देखे बिना कहा, उन्होंने शिकागो में नया घर लिया है, इसलिए नंबर चेंज है। ये उनके नए घर का नंबर है। उसकी पूरी बात सुने बगैर वो फोन कॉल मिला चुका था। फिर उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज आई। अब बोलो भी। इतनी देर बात करके भी
जी नहीं भरा कि दोबारा दानियाल की चहकती हुई आवाज दरमियान में ही बंद हो गई है। उसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। ये निम्रा थी। नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात करती रही हो। कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही। बुरी बात को उसने बुरे ही अंदाज से किया। मैंने आप ही से ही बात की थी। वो इधर उधर होंगी। तो दानियाल भाई ने फोन उठा लिया। तुम पूछ लो निम्रा आपी से फोन करके। मुझे जरूरत नहीं है किसी से भी पूछने की। मेरी अपनी अकल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। उसने फोन को किचन काउंटर पर पटका। वो इस पर शक करने का हक रखता था। अगर वो काबिले रश्क होती, वो अगर छुप छुप कर भी कुछ करेगी तो उसी से ही मोहब्बत करेगी। उसी से छुप कर अपने दिल की बातें करेगी जो वो उससे अपने सामने करने नहीं देता था। वो खामखा की खामियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वो उससे दूर रहना चाहता था। वो उसे दूर रखना चाहता था। उसे गुमान हुआ कि वो उस पर जिंदगी तंग करके उसे छोड़ देने की शय दे रहा है। वो इस पर सांसें भी तंग कर दे तो भी वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसके पास 100 उज़र होंगे, उसके पास एक भी नहीं था। इतनी सी बात पर वो रात का खाना उसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा। वो अपना खाना खुद निकालेगा और उसे लिविंग रूम में अकेला बैठकर खाएगा। वो उसे सॉरी भी कह देगी, तब भी वो ही करेगा। लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा, जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वो इंतजार करते करते सो जाती थी। वो वजाहत करती तो भी वो यही करता, तकरार करती तो भी, और लड़ती तब भी। यही सब होता इन दोनों के घर में। वो ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जैसे वहां अकेला ही हो। वो लड़की मौजूद ना हो जो उसकी बीवी है, जो उससे मोहब्बत करती है। वो उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू अशिया की खरीदारी जो वो किया करती थी, वो भी उसने अपने जिम्मे ले ली। एक दिन उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो महज लिविंग रूम में बनी उसे इस खिड़की के जरिए ही बैरूनी दुनिया से जुड़ी हुई है। उसे इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि उसकी दुनिया, उसका शौहर उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था, और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी। इस एहसास से वो इतना जान गई थी कि उसके शौहर की दुनिया अलग है। अभी भी वो बीवी बनकर भी इसकी दुनिया का बादशाह नहीं बन सकी, क्योंकि दिल की दुनिया की आबादकारी ताल्लुक से नहीं, एहसास से होती, पसंदीदगी और चाहत के एहसास से, पा लेने और अपनाए रखने के एहसास से। उस वो ये सब सोच रही थी, लेकिन अगर उसे सोचने का काम करना ही था तो पहले करना चाहिए था। अब देर नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर वो ये सब सोच भी लेती तब भी वो यही करती, उससे शादी। एक दिन तंग आकर वो उसकी मिन्नत करने लगी कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले, उसे खुली हवा में ले चले, उसका हाथ पकड़ ले, उससे चंद बातें करे, उसे इस पाताल से कुछ देर के लिए निकाले जहां वो अकेली पड़ी रहती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे घर में रहने वाली बीवी चाहिए। तो क्या मैं घर में नहीं रहती? बस फिर घर ही रहो। क्या घर में रहने वाली बीवी अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जाती? अपने शौहर के साथ भी नहीं? तो तुम्हें हर सूरत बाहर ही जाना है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर बाहर। मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। मैं तफरीह नहीं चाहती, कुछ सुकून चाहती हूँ। एक ही बात है, इतना पढ़ा लिखा शख्स कितने झूठे तंज कर रहा था। इसे ये जेब नहीं देता था। ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते। मैं बाहर नहीं जा सकती तो क्या इस घर की छत तले हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते? तुम घर आते हो, वह मुश्किल खाना खाते हो और फिर से बाहर चले जाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम वॉक के लिए जाते हो और तुम इस वक्त वापस आते हो।
जिस वक्त तुम्हें यकीन हो जाता है कि मैं सो चुकी होंगी, मैं सो नहीं जाती, मैं सोती बन जाती हूँ ताकि तुम वापस ना पलट जाओ। तुम घर में जहाँ कहीं भी बैठते हो, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम स्टडी करना याद आ जाता है। फिर तुम स्टडी रूम से ही नहीं निकलते और मुझे ही दृष्ट अंदाज लिए कहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ने दूं। मैं भी तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने साथ जिंदा रहने दो, हमारे एक साथ होने का एहसास दिलाने दो। मोहब्बत, मैंने कहा था ना तुम्हें, मोहब्बत नाम की चीज में से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कितनी बार याद करवाना होगा। इसका लहजा भी स्पार्ट था और अंदाज भी। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है, सब जानते हो तुम मेरे लिए बदल गए हो, तुम मेरे लिए बदले ही रहना चाहते हो। तुम ये भी जानते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेतहाशा है, इतनी ज्यादा है कि तुम मेरी गर्दन भी काट डालो तब भी ये मोहब्बत नफरत में नहीं बदलेगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस नहीं करना चाहते, तुम सब जानते हो। तुम इस जान लेने को माना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। वो अपनी मर्जी की बात का जवाब ही देता था। तुम मुझ पर शक करते हो, क्या ये ठीक है? मोहब्बत तो दूर की बात है, हम दोनों में तो कोई रिश्ता ही नजर नहीं आता। तुम अपनी और मेरी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि क्या कुछ गलत हो रहा है? गलत, वो तो कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। तुम्हारी बीवी क्या गलत करेगी? हम तो दोस्त भी थे, भूल गए कितना पसंद करते थे तुम मुझे। गलत तो कोई भी कभी भी कर सकता है, अच्छा दोस्त भी। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये कहते वो बेहद संजीदा था। कोई भी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। आम हालात में वो उसके इस तरह कहने पर शायद तालियां बजाती कि वो बिना जाने इतनी ठीक बातें कैसे कर सकता है। उसने कैसे जान लिया कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा दोस्त भी, वो अकेली ही उसके सामने खड़ी इस सब का इल्जाम ले रही थी, सजा भुगत रही थी। वो अपने मलाल पर तालियां नहीं बजाना चाहती थी, वो उससे दूर होता जा रहा था कि ये इसका गुमान था, वरना वो उसके करीब कभी था ही नहीं। वो हर बार, हर दिन कुछ से कुछ बनता जा रहा था। शादी से पहले की दोस्ती वो भूल ही चुका था, जैसे उसे जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो सिर्फ इतना कि वो उसकी बीवी है बस। वो उसे रख कर भूल नहीं गया था, वो उसे जिंदगी में शामिल करके पछता रहा था। वो उसे फरामोश कर रहा था, हर आने वाले दिन पहले से ज्यादा। वो उसे रास्ते दिखा रहा था निकल भागने के, और वो उन रास्तों से निकल भाग नहीं रही थी। वो और से और इसमें कैद होती जा रही थी। वो उसकी होती जा रही थी, जिस शिद्दत से वो उसे खुद से परे धकेल कर उससे दूर हो रहा था, उससे हजार गुना शिद्दत से वो उसकी तरफ भाग रही थी।